شکر کرتے ہیں اور عبادت کے اس بقیہ حصے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہماری رہنمائی کر، اپنے خادموں کو خداوند برکت دے، قوت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور خداوند ایک ایک کو خداوند آج اس عبادت کی برکت سے خداوند تو مالا مال کر، تاکہ ہم خداوند سیر ہو کر گھروں میں جا سکیں، ایک ایک کے ساتھ ہو۔ مانگتے ہیں سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، 8واں باب اور 28ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ ویسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا گول چل رہا تھا۔ بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا، اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ یہ علاقہ گراسینیوں کا تھا، جگہ کا نام گراسا، اور رہنے والوں کو گراسینی کہتے تھے۔ کیتھولک ترجمے نے یہ واقعہ جو ہے یہ مقدس مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مقدس لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، اور تینوں جگہ جب کیتھولک ترجمہ میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر جرجاسیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ علاقہ جرجاس کا تھا۔ یہ جگہ جو تھی یہ کوئی گلیل سے 9.5 کلومیٹر دور کا یہ علاقہ تھا، گلیل کی جھیل سے، اور اس علاقے کے قریب کو گدرا بھی کہتے تھے، گدرے کا علاقہ، گدرینیوں کا علاقہ، گدرینی بھی کہتے تھے، اور آج کل اس جگہ کا نام کراسا ہے۔ اس جگہ کا نام جہاں پر یہ معجزہ ہوا تھا، آج کل اس جگہ کو کراسا کہتے ہیں۔ اور مقدس متی یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر کرتا ہے، 2 آدمی جن میں بدروہیں تھی۔ مقدس مرکز
کہ 5वें बाब में एक शख्स का जिक्र है, मुक़द्दस लूका भी एक शख्स का जिक्र करता है। अब कई लोग इतराज करते हैं कि ये क्या है, ये डिफरेंस क्यों है, ये बदला है, ये फर्क क्यों है। तो जो बात मैं बयान करना चाहता हूं आज के कलाम में से पहली दफा, याद रखें कि जो कलाम मेरे हाथ में है, जो कलाम आपके हाथ में है, ये कोई बदला नहीं, ये सिर्फ बदलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब उलमा बयान करते हैं कि ये जो वाकया हुआ है, अब बोलने वाला शख्स एक है, इसलिए मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका उसका ही जिक्र करते हैं जो बोल रहा है। बदरूहे दूसरे में भी है लेकिन वो बोल नहीं रहा। वो आमतौर पर यहां पर बहुत दफा मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। दो बहनें मेरे पास आती थी, दोनों बदरू गिरफ्तार थी, लेकिन एक में हाजिरी होती थी, बोलती दूसरी थी। हाजिरी दोनों में हो रही होती थी, लेकिन बात एक करती थी, दूसरी नहीं करती थी। अब भी वो आती हैं तो इसी किस्म के वाकयात, और भी बहुत से मैंने इस बात का तजर्बा किया, सीखा है कि जवाब सवाल सिर्फ एक के मुंह से हो रहा है, बाकी खामोश है। और कलाम ये बयान करता है कि आदमी दो ही थे, लोग दो ही थे जिनमें बदरूहें थी गरासीनियों के इलाके में। और मैंने बयान किया कि ये मरकस और लूका में भी इस वाकया का जिक्र है। ये लोग रहते कब्रों में थे, इनकी रहाश का कब्रें हैं। और आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर से सुनेगा। जिनमें बदरूहें होती हैं, जिन घरों में बदरूहें होती हैं, जिन खानदानों में बदरूहें होती हैं, असल में वो जिंदा ही मुर्दा होते हैं। वो जिंदा नहीं होते, वो जमीन पर तो जिंदा होते हैं लेकिन जिंदगी मुर्दों जैसी गुजारते हैं। उनके घरों में जितनी तकलीफें, जितनी मुश्किलें, जितनी परेशानियां, जितनी लड़ाइयां, जितने झगड़े, जितनी मार कुटाई, जितनी परेशानी होती है, असल में वो घर कब्रें ही होती हैं। मैंने इस बात का तजर्बा किया। जिन घरों में शैतानी कुव्वतें होती हैं, उन घरों में दिन चढ़ता है, लड़ाई शुरू होती है, रात होती है, मुंह बंद होते हैं तो लड़ाई खत्म होती है। यहां पर भी दो अशखास हैं जिनमें बदरूहें थी, और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है वो तुंद मिजाज थे। दूसरी बात यह है कि एक और निशानी आपको बताना चाहता हूं कि जिनमें बदरूहें होती हैं वो गुस्से से भरे होते हैं। ये भी तुंद मिजाज है। जो खुदावंद के कलाम में बात इनके लिए बयान की गई, इनकी जो खूबी बयान की गई है कि तुंद मिजाज है, लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं। और जिन घरों में बदरूहें होती हैं, मियां बीवी लड़ लड़ हलकान हो जाते हैं। और लड़ाई खत्म किधर होती है? जिन घरों में बदरूहें होती हैं, जिन मियां बीवी में बदरूहें होती है, लड़ाई शुरू होती है और खत्म होती है मैं नहीं तेन रखना तो मैं नहीं तेरे ना रहना। हर लड़ाई इधर आके खत्म होती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो धाड़ता फिरता है कि किसे फाड़ का है। जब मियां बीवी की लड़ाई हो, बहुत ज्यादा हो, और हर लड़ाई हर हफ्ते खत्म, इधर मैं नहीं तेन रखना तो मैं नहीं तेन रहना, याद रखें उस घर में शैतानी कुव्वतें काम करती हैं। बच्चे लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, अजीज लड़ते हैं, खानदान के अफराद लड़ते हैं। इनकी जिंदगी में भी यह कि तुंद मिजाज आई है, गुस्से से भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े पर तुले हुए हैं, और ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे। और तीसरी बात आज के कलाम में से बयान करना चाहता हूं कि जिन घरों में बदरूहें होती हैं, उन घरों के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। उन घरों में डरते ही कोई नहीं आता, रिश्तेदार भी छड़ देंगे ने, अजीज भी नहीं आते। आजकल तो वैसे एक और भी मामला है, आजकल जिन घरों में कोरोना है, रिश्तेदार उस घर से भी नहीं जानते, मिलने वाले उस घर में भी नहीं जाते, सान होना कितने लग जाए। और बदरूहें भी मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और आकर इस बात का इजहार करते हैं कि पादी साहब हम परसों शादी पर गए हैं, जिस घर में हम शादी पर गए थे उस घर में जो लोग हैं वो जादूगरी करते हैं, बदरूहें उस घर में हैं, हमारे बच्चे आके सो नहीं डर रहे हैं। ये भी ऐसे लोग हैं, तुंद मिजाज हैं, और इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और रास्ते आज भी जिन घरों में बदरूहें होती हैं उनके बंद हो जाते हैं। उन खानदानों से कोई मिलना पसंद नहीं करता, उन खानदानों से कोई रिश्तेदारी करना पसंद नहीं करता। उस घर में उस खानदान से लोग डरते हैं, इनसे भी डरते हैं। और मेरी खिदमत में
بارہا ایسا ہوا ہے, تھوڑی میری آواز اگر کام کر دے تو, میری خدمت میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کئی دفعہ 8 10 لوگ انہیں اٹھا کر لاتے ہیں, پکڑ کر لاتے ہیں, بازوؤں سے پکڑا ہوتا ہے, ٹانگوں سے پکڑا ہوتا ہے, گردن سے پکڑا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں پادری صاحب دا کی بننا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, ادھر بھی اس چرچ میں بھی کئی دفعہ ہوا ہے, پرانے چرچ میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 5 10 لوگ پکڑ کر لاتے ہیں اور یوں چھڑا دیتے ہیں. اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کھڑا نہیں ہوتا, میرے ساتھ میرے پیچھے خداوند کھڑا ہوتا ہے. میں اتنا طاقتور نہیں ہوں, میں اتنا زور اور نہیں ہوں, لیکن رب ساڈا زور ہے, وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں دلیری کے ساتھ کہہ دیتا ہوں اکثر, اسے چھوڑ دو, اسے میرے پاس آنے دو. اور ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے جب 5 10 لوگ اسے چھوڑتے ہیں, وہ یوں کر کے بھاگ کے آتا ہے اور آ کے میرے قدموں میں گر جاتا ہے, کیونکہ یسوع میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یسوع میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یسوع آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے. اور یہ بھی آئے ہیں, زنجیریں توڑ دیتے ہیں, لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں, کوئی ان کے پاس ڈرتا نہیں آتا. اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کوئی راستے سے گزر نہیں سکتا تھا. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک لڑکا تھا جس کی پشتوں میں شیطانی قوتیں تھی, میرے پاس آیا. کچھ دن میں اس کے ساتھ رہا, بلکہ کئی دن کئی ہفتے میں نے اسے اپنے پاس گرجے میں رکھ لیا جب تک وہ آزاد نہیں ہوا. تو اس کو دورہ پڑتا تھا, وہ بہت شور کرتا تھا, بہت بھاگ دوڑ کرتا تھا, بہت وائلنٹ ہو جاتا تھا. ایک لڑکا میرے پاس آیا اگلے دن دعا کے لیے. اس نے کہا کہ پادری صاحب میرے لیے دعا کریں, کل جو لڑکا گرجے میں جس کو بدروں نے تنگ کر رہی تھی, جو بڑا شور کر رہا تھا, جس نے ادھم مچایا ہوا تھا, میں اس کو دیکھ کے بڑا ڈر گیا ہوں, میرے لیے دعا کریں, میں رات سویا نہیں. اب میں نے ساتھ میرے بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے کہا جڑا راتی رولا پاندا سی تیرے نال بیٹھا ہی. وہ ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یسوع نے رات کے اس کے زور کو توڑ دیا. یہاں پر بھی ہے کہ کوئی گزر نہیں سکتا تھا, اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام. جیسے ہی ان کی نظر یسوع پر پڑی ہے, وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یاد رکھیں ابلیس جانتا ہے, ابلیس جانتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. لیکن جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں, یاد رکھیں یسوع اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ابلیس اسے خدا کا بیٹا کہے. یسوع اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اسے خدا کا بیٹا کہیں, ہم اسے خدا کا بیٹا مانیں. کیونکہ ابلیس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے, کوئی رہائی نہیں ہے, کوئی آزادی نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ دوزخ انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ دوزخ شیطانی قوتوں کے لیے بنا ہے. جو ابلیس کے پیچھے جاتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. باقی انسانوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے خدا نے جنت بنایا ہے, خدا نے دوزخ نہیں بنایا. وہ آ کر اسے کہتے ہیں, چلا کر کہا خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام, ہمیں تجھ سے کیا کام. اور جو بات میں اگلی کرنے والا ہوں, شیطان کو خدا کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ کام ہے, اس لیے کہ ہمارا خدا ہے, ہمارا خدا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کام ہے, اسے ہمارے ساتھ کام ہے. کیونکہ وہ تو مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے آیا تھا, ابلیس کو نجات دینے کے لیے نہیں آیا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیں تجھ سے کیا کام. یہاں پر دیکھیں کہ اس کی شرارت کیا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے ہمیں, اور یسوع کو کہہ رہا ہے تجھے. خود کو کہہ رہا ہے ہمیں, عزت کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور یسوع کو کہہ رہا ہے تجھے. اور یاد رکھیں کہ شیطان جن میں کام کرتا ہے, شیطان جن میں ہوتا ہے, وہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں. خدا کی مخالفت کرنا شیطان کا کام ہے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے ہمیں تجھ سے کیا کام, کیا تمہیں یہاں پر آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے. دوسری بات سچائی پر مبنی ہے. ہمارا خدا, میرا اور آپ کا یسوع, آج بھی ابلیس کو عذاب میں ڈال سکتا ہے.
बदरूहों को अजाब में डाल सकता है। कई दफा जब मेरा मुकाबला होता है तो मैं खुदावंद से कहता हूं, खुदावंद ये शैतानी कुव्वतें, मैं तेरी मेहनत करता हूं कि ये अथाह गड्ढे में चले जाएं, पिट में चले जाएं। इंग्लिश में कहते हैं पिट, उर्दू में कहते हैं अथाह गड्ढा, जहां पर इब्लीस को बंद किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि चल मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, अथाह गड्ढे में चला जा, और मैं यीशु से कहता हूं यीशु इसके ऊपर ढक्कन लगा दे, ये दोबारा ना निकल सके। कई दफा मैं कहता हूं कि मैं तुझे यीशु की सलीब के नीचे लेके जाता हूं, फिर मेरा काम खत्म हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाए, जब वो यीशु की सलीब के आता है, नीचे आता है, फिर यीशु का काम शुरू हो जाता है, फिर यीशु उसे पकड़ लेता है। यहां पर भी कहता है तू मुझे वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आया है। यीशु मेरा और आपका यीशु उसे वक्त से पहले अजाब में डाल सकता है। कब्रों में रहते हैं, उस वक्त कब्रों को नापाक जगह समझा जाता था, और यह नापाक इलाका समझा जाता था, और ये इलाका जहां पर है, पहली बात तो ये मैंने बताया कि कब्रों में रहते हैं, ये नापाक इलाका उनके लिए समझा जाता था। और यहां पर थोड़े यहूदी रहते थे, ज्यादा गैर कौमें रहती थी, गैर ईमानदार लोग रहते थे। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के जब वो सामने आती हैं तो वो बातें करती हैं आके, तो हमें वक्त से पहले अजाब में डालने आया। उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गौल चल रहा था, बस बदरूहों ने उसकी मेहनत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गौल में भेज दे। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह, अगर 8वें बाब की, इसी बाब की 16वीं आयत को देखें तो वहां हमें इस बात का पता चलता है कि 8वें बाब की 16वीं आयत, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। मेरे पास परसों सुबह एक खातून आई, मुझे अपनी उंगलियां दिखा रही, मुझे अपने हाथ दिखा रही, उसका खामद उसके साथ था। उसने कहा मेरी कमर में आपको दिखा नहीं सकती, कितने डंडे मारे हैं मुझे पीरों ने, कितने डंडे मारे हैं मुझे बदरूहों निकालने वालों ने, पर से मेरी उंगलियां सूज गई हुई हैं। मैं बड़े सालों से बदरू गिरफ्तार थी, मैं बड़ी बड़ी जगह पर गई, बड़ी बड़ी मार मैंने खाई, लेकिन यहां पर आकर हमने सीखा है कि आपने तो सिर्फ जुबान ही से हुक्म दिया तो वो चली गई हैं। अब मैं आजाद हो गई हूं। उसका खावंद जो उसके साथ है, उसने कहा मेरी बीवी बड़े सालों के बाद आजाद हो गई है, अब इसके जिस्म पर जख्म बाकी हैं। एक और खातून प्यारी बहन परवीन मेरे पास आई, हमारे चर्च में आई, और वो कुबड़ी होकर चलती थी, यूं करके यूं चलती थी, कमर उसकी टेढ़ी हो गई थी। मैंने कहा क्या हुआ है? उनके लाहौर पाइयों को ला गए सा, कोट कोट के मेरी बीवी का लाखों ना दूरा कर देता, अब सीधी होकर चल नहीं सकती। और यीशु के बारे में क्या लिखा कि वो जुबान ही से हुक्म देता था और बदरूहें चली जाती थी। याद रखें कि चोट बदनों पर लगती है, चोट रूहों पर नहीं लगती। 8वें बाब की 16वीं आयत में फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हाँ, कई दफा मैं मुंह पर हाथ रखता हूं, मुंह बंद करवाता हूं। कई दफा जब लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं हम उन्हें रोकते हैं, मुझ पर तो नहीं, लेकिन कई दफा साथियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं, रोकते हैं, जोर के साथ रोकते हैं। लेकिन यीशु की खिदमत यह है कि वो जुबान से हुक्म देता था और बदरूहें उसका हुक्म मानती थी। मैंने उस खातून के लिए दुआ की और मैंने मेरी बहन परवीन को कहा, शायद उसके खानदान के लोग यहां पर हों, मैंने कहा, मैंने दुआ किया और खुदा ने मुझे कहा इसको बीमारी कोई नहीं, इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ और ये ठीक हो जाएगी। इसको यीशु ने कहा था कि बीमारों को तबीब की
یسوع نے کہا تھا بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، اور وہ میرے بھائی اسے لے گیا اور ڈاکٹرز نے اس کو ڈائگنوز کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی. پھر ہم نے دعا کی، پھر اس کی کمر بھی سیدھی ہو گئی. یہاں پر بھی خداوند یسوع جو کام کرتے ہیں وہ زبان سے حکم دیتے ہیں اور بدروہیں نکل جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. کسی اور کے پاس ایسا اختیار نہیں جو ہمارے یسوع کے پاس ہے. اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. اور یہ قبروں میں رہتے ہیں، ناپاک جگہ پر رہتے ہیں، اور یسوع کو دیکھ کر وہ قبروں سے نکل آئے ہیں. یاد رکھیں جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں، یسوع زندہ لوگوں کو بھی قبروں سے نکال سکتا ہے. یسوع میرا اور آپ کا یسوع مردہ لوگوں کو قبروں سے زندہ کر سکتا ہے. یہ نیم مردہ ہیں، یہ جسمانی طور پر نہیں مرے، یہ روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں. یسوع روحانی مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، یسوع جسمانی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ قبروں میں رہتے ہیں، ناپاک جگہ پر رہتے ہیں. یسوع ناپاک جگہ سے نکال کر پاک جگہ پر لے آتا ہے. یسوع قبروں سے نکال کر زندگی میں لے آتا ہے. یسوع 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر کے اس بات کو ثابت کرتا ہے میں مرے ہوئے پرانے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. پتہ نہیں یہ کب سے قبروں میں رہتے ہیں. خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. اور یسوع بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہاں پر ان کے لیے زندگی کے دروازے بند ہیں اور یسوع ان کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے. اور کہتے ہیں تو یہاں پر کیوں آیا؟ سوال کرتے ہیں شیطانی قوتیں، تو یہاں پر کیوں آیا؟ یسوع اس لیے آیا تھا کہ وہ نجات پائیں، وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. یسوع آج بھی ہمارے درمیان ہے، آج بھی ہمارے درمیان آنا چاہتا ہے، ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، ہمیں آزادی دینا چاہتا ہے. ابلی جانتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پاس اختیار ہے. اب وہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں اجازت دے. ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا. بس بدروؤں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے. ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سارے واقعہ کو پڑھیں تینوں اناجیل میں، اناجیل متوافقہ میں، سنوپٹک گاسپلز میں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس معجزے کو ہوتے ہوئے وقت لگا تھا. منٹوں میں نہیں ہوا. یہ شاید یہ بات چیت کرتے سارا کام کرتے ہوئے کچھ عرصہ لگ گیا ہوگا، کچھ گھنٹے لگ گئے ہوں گے. اور جو بات میں اگلی بتانے والا ہوں، کئی دفعہ ہمیں مقابلہ کرتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے. کئی دفعہ دن لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ مہینے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہفتے لگ جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع بدروحوں کو نکال رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے. کئی دفعہ شفا، دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں جی. ایک معجزہ ہوتا ہے، معجزہ سپونٹینیسلی ایک دم ہو جاتا ہے، اور شفا گریجولی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، بتدریج ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سوروں کا غول وہاں چل رہا تھا اور وہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم سوروں میں چلے جائیں. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا یسوع رب العالمین ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یسوع فرماتے ہیں اور اگر بدروحوں کو سوروں کے اندر جانے کی اجازت چاہیے تو وہ صرف میرا یسوع دے سکتا ہے. سور حرام جانور ہیں لیکن میرا یسوع ان کا بھی خدا ہے. وہ اجازت مانگتے ہیں. اور اسی طرح جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمانداروں کی زندگی میں، غور کرنا جو لفظ میں بول رہا ہوں اس پر دھیان دینا، اگر ایمانداروں کی زندگی میں بدروحوں کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو خداوند سے اجازت درکار ہوتی ہے. بغیر خدا کی اجازت کے بدروحیں ایمانداروں کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیں کہ جانوروں میں بھی بدروحیں چلی جاتی ہیں. میں نے اپنی خدمت میں بارہا یہ سیکھا. کئی دفعہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں. ایک بہت ہی معجزات ایسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ مجھاں گاواں بیمار ہو گئیاں
यहीं पर भी शायद आज हमारी बहन एक आई हो, मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि बस अब हमारी भैंस थी 5 किलो दूध देती थी और पाइया ते आ गई है, 5 तो 4, 4 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1 ते हुण पाइया 1.5 पाइया दूध देंदी है ते सज्जर सूए है। मैंने कहा अच्छा मैं दुआ करता हूं और अगले हफ्ते जब तू आएगी तो 5 किलो पूरा होएगा तो ले आई फिर गिरजे। मैंने तेल पर दुआ करके दी, पानी पर दुआ करके दी। मैंने कहा जाके उधर थान तो होके अवाना तो होके तेल ऊपर लगा देना, पानी का छींटा उसके ऊपर मार देना और सवेरे दूध वध जाएगा तो 3-4 दिन च पूरा हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते वो 5 किलो दूध लाके पूरा गिरजे आ गई सी। उसकी भैंस पर जादूगरी हो गई थी, उसका दूध किसी ने बंद कर दिया था। जानवरों में भी बदरूहें जा सकती हैं, जानवरों में भी बदरूहें जा सकती हैं, हमारे माल डंगर में भी बदरूहें जा सकती हैं। और यहां पर भी ऐसे है कि बदरूहें सूरों में चली गई। सूर हराम जानवर है, वहां पर मैंने बयान किया यहूदी भी रहते थे, गैर कौम भी रहते थे जो सूरों की करते थे और सूरों को पालते थे, उनकी बिजनेस करते थे। और यहां पर है कि इंसान में दाखिल होने के लिए भी शैतान को खुदा की इजाजत चाहिए। अय्यूब की किताब के पहले बाब को पढ़ लें, वहां लिखा है कि शैतान खुदा की हुजूरी में गया और खुदा ने शैतान से पूछा तू मेरे बंदे अय्यूब को जानता? कहता मैं जानता हूं, क्या करूं? तूने उसके और उसके घर के जो कुछ उसका बाढ़ लगा रखी है, जरा बाढ़ को हटा दे, मैं तुझे बताता हूं। फिर खुदा ने बाढ़ को हटा दी, फिर शैतान उसके घर में खानदान में दाखिल हुआ, उसे तबाह किया, लेकिन खुदा ने फिर बहाल कर दिया। और अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हमें इस बात का भी पता चलता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13वां बाब, मुकद्दस मरकस की इंजील 14वां बाब, वहां पर मरकस 14 बाब 27वें 31वें आयत में खुदा यीशु मसीह पतरस से मुखातिब है। पतरस को कह रहे हैं शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। खुद हमला नहीं कर रहा शैतान उन पर, बल्कि यीशु से इजाजत मांग रहा है। हवाले पढ़ लीजिएगा जाके, तीनों वाले मैंने बता दिए। शैतान यीशु मसीह से इजाजत मांग रहा है। यहां पर सूअर में जाने के लिए बदरूहें यीशु से इजाजत मांग रही हैं, हम सूरों में जाना चाहती है। और यहां पर हम देखते हैं कि शैतान शागिर्दों में दाखिल होने के लिए यीशु की इजाजत को मांग रहा है। बगैर मेरे यीशु की इजाजत के, बगैर मेरे यीशु की मर्जी से शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता। उसे इस बात का एहसास है कि हम खुदा के लोग हैं। उसे मुझ पर और आप पर हमला करने के लिए खुदा की इजाजत चाहिए, खुदा से उसे दरखास्त करनी पड़ती है। मुकद्दस कलाम में मुकद्दस मरकस बयान करते हैं कि सूरों की तादाद 2000 थी, तादाद सूरों की 2000 थी। और बदरूहों के बारे में बयान करते हैं कि यह लश्कर था, लीजन, लश्कर। और एक लश्कर में 2000 से 6000 तक फौजी होते थे। इसका मतलब है ये बदरूहों की तादाद हजारों में थी, हजारों की तादाद में बदरूहें थी। और मैंने अपनी खिदमत में, अपनी जिंदगी में अपनी खुली आंखों से लश्करों को देखा है। खुदा ने मुझे तजर्बा करवाया था आज से 16-17 साल पहले। 16-17 साल पहले एक शाम मैंने अपनी आंखों से आसमान पर हजारों की तादाद में दिन के वक्त में बदरूहों को देखा था। मुझे उन्होंने अपने आप को दिखाया। एक लड़की के लिए मैं दुआ कर रहा था जिसमें लश्कर थे। और शाम को एक दिन मैं अपने शहर में लेटा हुआ था तो वो मेरे ऊपर हंसते हुए हजारों की तादाद में बदरूहें चक्कर काट रही थी, हंस रही थी मुझे देख के। और शाम को वो लड़की आई गिरजे में, मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की और हजारों की तादाद में बदरूहें आ गई। और आते ही मुझे कहती तूने हमारे जोर को देखा है, तूने मैं देखा है कि हम कितने ज्यादा हैं। मैंने कहा मैंने देख लिया तुम कितने ज्यादा हो, लेकिन सुनो तुम हजारों हो और मैं सिर्फ अकेला खुदा का खादम, आप सबको आना पड़ा है। मैं अकेला हूं
लेकिन तुम हजारों की तादाद में हो, लेकिन खुदावंद के खादों का इख्तियार देखो, आप सबको मैंने दुआ शुरू किया और आना पड़ा है। और फिर वो लड़की जो बचपन से आजाद थी, वो लड़की 10-12 साल के बाद आजाद हो गई और पिछले चंद माह पहले उसकी शादी भी हो गई है। याद रखें कि शैतानी कुव्वतों को ईमानदारों में दाखिल होने के लिए खुदा की इजाजत दरकार होती है, मेरे यीशु की इजाजत दरकार होती है। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि वो लोग, जब ऐसा होता है, बदरूहें उसमें चली जाती हैं, सूरों में चली जाती हैं, उसने उनसे कहा जाओ, और वो निकल कर सूरों के अंदर चली गई। और देखो सारा गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब पर मर गया। यीशु को बदरूहों ने कहा था तू हमें वक्त से पहले हलाक करने आया है, और यीशु ने बदरूहों को सूरों के अंदर जाने दिया। सूरों ने कड़ाड़े से छलांग लगाई और झील के अंदर चली गई, और झील के अंदर फिर पिट थी, फिर अथाह गड़ा था, वो बदरूहें फिर अथाह गड़े में चली गई, और यीशु ने उनको हलाक कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा तू वक्त से पहले हमें हलाक करने के आया। और याद रखें, यीशु आज भी वक्त से पहले बदरूहों को हलाक कर सकता है, वो उन्हें अथाह गड़े में डाल सकता है, वो उन्हें हलाक कर सकता है। जब ये वाकया हुआ और पानी में डूबकर मर गया, सूअर मर गए, तो चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा उन लोगों, उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी, बयान किया। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला, सारा शहर आ गया। याद रखें कि जब ऐसे मौजे होते हैं बड़े बड़े, फिर सारा शहर आता है, और जरा हाथ मुझे हिला दें सारे। मेरी दुआ है कि यहां पर भी सारा शहर ही आ जाए, हमारी दुआ है कि यहां पर भी सारा शहर ही आ जाए और आके देखे कि हमारा खुदा कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। यहां पर भी है कि सारा शहर निकल आया है, वो कौन आ गया हमारे इलाके में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कैसा बंदा आ गया है जिसने हमारे इलाके से लश्करों को निकाल दिया है। और याद रखें, जिस घर में मैं खड़ा हूं, जिस घर में आप बैठे हैं, जिस यीशु की सलीब के नीचे हम खड़े हैं, ये यीशु आज भी लश्करों को निकाल सकता है, आज भी लश्करों को निकाल सकता है। फतह आखिरकार हमारे यीशु की होती है। और आज के कलाम में से आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा, हमारी सरहदों से बाहर चला जा। और यह दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बात है कि यीशु आपके घर में है और आप उसे निकाल दें। दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बात है खुदावंद यीशु आपके घर में आए, निजात आपके घर में आए, शिफा आपके घर में आए, और आप उसे कबूल करने से इनकार कर दें। इन लोगों ने यीशु से कहा तू हमारे शहर से चला जा। नुकसान हुआ है इनका, गोश्त पोर्क मर गया है, इनका गोश्त मर गया है, इनके सूअर हराम खाने वाले, जो बात मैं करने वाला हूं जरा कड़वी है, हराम खाने वाले, हराम खिलाने वाले, हराम की कमाई खाने वाले यीशु को आज भी अपने घरों से निकालते हैं। यीशु आज भी उनके खानदानों से निकलता है। यहां हराम खाने वाले हैं, सुअर खाने वाले हैं, पोर खाने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि साढ़े घरों चला जा, साढ़े शहरों चला जा। आज भी हराम खाने वाले, हराम की कमाई खाने वाले, हराम कमाने वाले अपने घर में यीशु को नहीं आने देते। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी मुश्किल बात है। मैंने कहा था ये कड़वी बात है, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, लेकिन यह हकीकत और सच्चाई है। आज भी ऐसे लोग यीशु को अपने घर में नहीं रहने देते। उन्हें निजात नहीं चाहिए, उन्हें हराम का पैसा चाहिए, उन्हें हराम की चीजें चाहिए, उन्हें हराम का खाना चाहिए। खावा ना उन्होंने दे सवादले खाने, उन्होंने विचों ना एक गरा मेरे वल तू छेतिया। मेहरबानी से गौर से सुने, यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है।
यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, यीशु हम सबों की ज़िंदगी में रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं। मेहरबानी से आज वादा करें कि कभी अपने घर से यीशु को नहीं निकालेंगे, कभी अपनी ज़िंदगी से यीशु को नहीं निकालेंगे, बल्कि जो अंदर से कुंडियां लगी हैं उन्हें खोल देंगे। यीशु मेरे और आपके घर में आए, आपको निजात दे, आपको निजात दे, सारी दुनिया को, हमारे शहर को निजात दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के जलाल के लिए। तालियां थोड़ी देर बजती रहें, तालियां थोड़ी देर बजती रहें, तालियां थोड़ी देर बजती रहें। ये यीशु के जलाल के लिए है, यीशु के जलाल के लिए। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। सारे बोले आमीन। आप सबको बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे।